Morning children, let us start with 18b. This 18b na, in this 18b we have to just draw frequency polygon. What is frequency polygon? Polygon, you know, a figure having so many sides. Okay, number of sides is what called polygon. See, this first time I done for you, and you can see over here a polygon. First side, second, third, fourth, fifth, sixth, seven sides. ठीक है. सो इन दिस वी विल ड्रॉ फिगर्स फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. फर्स्ट हम देखो, कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू. क्लास इंटरवल इट इज गिवन 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24. One thing you have to note it down, you should be very careful regarding that कि upper limit of the first interval it should be equal to the lower limit of the second interval. Understood? It should be same. If it is not same, your first step is to make it same. देखो अब यहाँ पे भी सेकेंड अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड इंटरवल, एंड द अपर लिमिट ऑफ थर्ड इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ इंटरवल. ठीक है, इट शुड बी सेम. अगर ये सेम नहीं है, इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टू मेक इट सेम. आई विल टेल द प्रोसेस हाउ टू मेक इट सेम. यू हैव टू फाइंड एडजस्टमेंट फैक्टर h इज इक्वल टू subtraction divided by 2. That sum we have done in 18.a also. So it is given to us. So there are two methods to construct frequency polygon. ठीक है, अब it is given to you. This is the data given to you. ठीक है, you can draw frequency polygon using two methods. By using histogram, you can draw histogram. First, see, I have drawn for you. And second method is by taking class mark. This is the another method. ठीक है, both are correct. You can select any one. So I will show. I will solve this sum by using both the methods. ठीक है, firstly by histogram. Histogram it is easy. You draw histogram. See, 0 to 4. 0 to 4. You can draw it on your notebook also. If you have graph paper with you, it would be better you use graph paper. ठीक है, and then paste it on your notebook. Use graph paper, draw frequency polygon on the graph paper and paste that graph paper in your fair notebook. Understood? So firstly you check it is given 0 to 4, 4 to 8. So I have started from 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26. 24 is the maximum, no? तो 20 आगे भी ले लिया मैंने. 24, 4 का डिफरेंस है. See, the difference is same. 4 minus 0 is 4, 8 minus 4 is 4, 4, 4, 4, 4. If the distance between all the terms is same but the 0 to the number it is different, then you have to show it broken. ठीक है, you have to show it broken. But here distance was same, so no need to show it broken. अब यहाँ पे देखो लीस्ट वैल्यू कितनी है 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15. तो I have just taken two interval. I have taken the lines at interval 2. ठीक है, 2, 4, 6, 8. You will keep it in mind. One thing you will keep in mind कि this distance should be same everywhere. ठीक है, if you are taking this interval 1 centimeter, it should also be 1 centimeter. ठीक है, so that's why I'm telling you to use graph paper for this. If you don't have graph paper, then on notebook you draw, but keep it in mind the distance should be same. ठीक है, और ये डिस्टेंस भी सेम होगा. ऑलवेज यू विल टेक फ्रिक्वेंसी लॉन्ग वाई एक्सिस. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड वाई एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस. and this is what called x-axis. It is essential, it is necessary to write it over here, x-axis or y-axis. Along y-axis you will take frequency. Always frequency will be taken along y-axis and intervals will be taken along x-axis. ठीक है, it is easy. 0 to 4 देखो 4 पे जा रहा है तो मैंने 0 to 4 यहाँ मिला दिया. ये जो आ गया आपके पास में रेक्टेंगल आ गया ना, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? 0 to 4 इंटरवल को. 4 to 8 7. 4 to 8 कहाँ पे जा रहा है? 7 पे. तो मैंने 7 पे मीट कर दिया. इन बिटवीन 6 and 8 होगा ना 7, तो यहाँ पे मैंने मीट कर दिया. दिस रेक्टेंगल आई हैव ड्रॉन. 8 to 12. 8 to 12 कहाँ पे मीट कर रहा है? इट इज़ एट 10. एट 10 पे मिला लो. ठीक है, सिमिलरली आगे सारे मिला के हमने भी बना लिया. अब हमने हिस्टोग्राम तो बना लिया. नाउ अवर मोटिव इज टू कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. फ्रिक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? इनका मिड पॉइंट ले लो. 0 to 4 इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियस है 2. जहाँ पे 2 होगा उसको मिड पॉइंट ले लिया. इस रेक्टेंगल का भी मिड पॉइंट ले लिया. 4 और 8 का मिड पॉइंट ले लो 6. इसका मिड पॉइंट, इसका कैसे पता लगता है मिड पॉइंट? 0 + 4 दोनों को प्लस करिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, दैट विल बी योर मिड पॉइंट. 4 to 8 कितना आ गया? 12. हाँ ठीक है, 4 to 8 कितना आ गया? 12. ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड. पता है क्या करना होता है? इन दोनों को प्लस करना होता है. मीन्स
this plus this divided by 2, this plus this divided by 2, this plus this divided by 2 is your mid point. तो मिड पॉइंट ढूंढिए सबके और उनको रैंडमली क्या कर दीजिए, जस्ट ज्वाइन कर दीजिए यूजिंग स्केल. ठीक है, यू विल नॉट गेट स्ट्रेट लाइन हियर, यू विल गेट स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स हियर. ठीक है, देन ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फिगर. एंड जस्ट रिमेंबर कि यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट विद द 0 और ये इसका 24 और 28 का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए एंड पॉइंट को. अंडरस्टूड. दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड अदर पॉलीगन बाय यूजिंग अदर मेथड. ठीक है, आई हैव ड्रॉन फॉर यू. सो सेम इसमें यू विल मेक दिस बॉक्स मीन्स टैबुलेशन फॉर्म में यू हैव टू रिप्रेजेंट द डाटा. क्लास इंटरवल इज गिवन 0 to 4, 4 to सेम सम आई एम टेकिंग. ओके, फर्स्ट सम ही ले रही हूँ मैं. अब इसमें क्लास मार्क ढूंढना है, पहले एक ही कॉलम बनाना है इसमें, ये वाला फ्रीक्वेंसी इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट. व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट क्लास मार्क. क्लास मार्क ढूंढना है. क्लास मार्क क्या होता है, सम ऑफ द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये आपकी आ गई क्लास मार्क. इसका नाम क्या होगा, क्लास मार्क. अब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ये ग्राफ बनेगा. ठीक है, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी यू नो वी आर ऑलवेज टेकिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस और जो क्लास मार्क होगा वी विल टेक अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिख लिया. आप जो क्लास मार्क आगे एक्स एक्सिस आगे होता है ना, एक्स कोफिशिएंट आगे होता है, वाई कोफिशिएंट पीछे होता है. 2, 4 का होगा ये पॉइंट, 6, 7 का नेक्स्ट पॉइंट, 10 का नेक्स्ट पॉइंट. इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 14, वाई कोऑर्डिनेट 15, एक्स कोऑर्डिनेट 18, वाई कोऑर्डिनेट 11, एक्स कोऑर्डिनेट 22, वाई कोऑर्डिनेट 6. अंडरस्टूड, यू गॉट द नाउ पेयर्स. These are what called ordered pairs. चलो 2 और 4 को पहले रिप्रेजेंट कर दें. एक्स एक्सिस पे 2 है, अभी देख लो. चलो पहले हम इसको मार्क कर लें पॉइंट्स को. अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम कितनी है 22. तो मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया. 0 to 2, 4, 6, 8, 22 तक ले लिया. ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस शुड बी सेम. अगर 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा. यू हैव टू कीप स्केल हियर एंड देन पुट डॉट्स, अदरवाइज यूज ग्राफ पेपर. ठीक है, और यहाँ पे देख लो मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15. तो 2 का डिफरेंस ले लिया. ठीक है, फ्रीक्वेंसी यू ऑलवेज टेक अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये बन गया हमारा. ठीक है, देखो फर्स्ट सम देखो क्या है 2, 4. तो 2 and 4 यहाँ पे मिल गया पॉइंट. इसको सर्कल कर देना. यू विल डार्कन दिस पॉइंट एंड यू विल सर्कल इट. यू विल राइट द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, देन सेकंड इज 6, 7. एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, हियर इट इज़ एंड दैट इज 7. 6 और 8 के बीच में लाई करेगा 7. यू विल डार्कन दिस पॉइंट एंड यू विल यूजिंग स्केल you will mark the points and then you will circle it and write the coordinates. Similarly you will mark all the points on the page or graph paper. ठीक है, then do one thing, do join the points, join कर लो with the help of scale. ठीक है, and you will join this to 0 and this to the mid point. वैसे तो मिड पॉइंट में होगा, यहाँ पे 1 में आएगा, बट ऑब्वियसली हम 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा. ठीक है, these are what 2 methods to construct frequency polygon. First one was using histogram. पहले histogram now then mid points को जोड़ दो. And second is this. You can use any method. If it is written a construct frequency polygon, you can use any method to construct it. Both will be correct. Okay.